So first we'll see the redox reaction. Now redox reaction, as we all know, that it is a combination of the two reactions, that is the reduction and oxidation. Okay. So in this case, as we know that the oxidation is a process in which there is a loss of electron, and reduction is a process in which there is a gain of electron. Okay. So here the So oxidation is a process where the electron is given by a particular substance, that is the loss of electron, and reduction is a process where the electron is accepted by a substance, that is the gain of electron. Okay. So in the oxidation reduction process, for example, if we have a reaction between the zinc and the copper, see the reaction over here on the PDF. यहाँ पर we have a zinc metal and copper ion. This is a reaction, and this zinc metal is converted into zinc ion, and copper is converted into the copper ion is converted into the copper metal. Okay. So in this reaction, the zinc atom is changed into the zinc ion, that is zinc is getting oxidized. जिंक जो है इट इज लूजिंग दी इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिंक में. तो जब कोई भी हमारा एटम जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज होता है, देन दैट पर्टिकुलर एटम गेट अ पॉजिटिव चार्ज. तो जिंक एटम जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस. ओके. एंड प्लस द इलेक्ट्रॉन्स. एंड नेक्स्ट कॉपर ion जो है, this copper ion is accepting the electron, and this copper ion is converted into copper metal. ठीक है. तो जहां पर हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन देखिए, इन द जिंक देयर इज एन ऑक्सीडेशन process, and at the copper there is an reduction process. And this zinc and copper, when we write the overall reaction, then we have the zinc metal is converted into zinc ion, and copper ion is converted into the copper metal. Okay. and ये जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन है, जब हम लोग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंबाइन करते हैं, then that is known as the redox reaction, or it is known as the oxidation reduction reaction. Okay. So in this oxidation reduction reaction, each of these reaction is a half reaction. यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है वो भी हमारी एक हाफ रिएक्शन होगी, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं. जहां पर रिडक्शन हो रहा है, दैट रिडक्शन इज आल्सो अ हाफ रिएक्शन, एंड दैट इज नोन एज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है. सो हमारे पास टू हाफ रिएक्शंस होती हैं. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड नेक्स्ट वी हैव द रिडक्शन हाफ रिएक्शन where the gain of electron takes place. Okay. and when these two half reaction combines, then we get a complete reaction, that is a redox reaction. Okay. So in this case, in the redox reaction, this redox reaction is so this redox reaction completes the reaction. Okay. Wait just a minute. So in this case, the redox reaction is a complete, two half reactions are completed for the redox reaction. ठीक है. So यहाँ पर हमारे पास विजिबिलिटी क्लियर है बेटा? आप थोड़ा साइज हमने बड़ा कर दिया. Yes, मेरी ma'am. आवाज आ रही है? ओके. सो redox reaction में reduction half reaction and oxidation half reaction combines, and they forms the redox reaction. Now next we have the electrode potential. Now in a reaction, the electrode potential is there. So in this case, when the particular metal is dipped in a solution of its own, okay, then we measure the potential of that metal, that is tendency to lose electron or tendency to gain the electron. Sorry. So in this case, the metal has a metal ion, and the electron, that is the valency electron, which is binded to the metal. Okay. So the valency electron is bind with the metal ion, and it forms a metal atom.
Okay, now if a metal is in contact with its solution, suppose, means when the metal is in contact with its own salt solution, then the positive ion from the metal, they goes into the solution, or from the solution the ions goes into the metal. Okay, we have a two condition. So when the positive ion goes into the solution, then the equilibrium is established between the ion, positive ion on the metal and the solution. Okay, and here the equivalent number of electrons are present on the metal and the equivalent number of electrons are present in the solution. So the equilibrium is established between the metal and the solution. Okay, so in this case, the when the metal has the electron and the ions are going into the solution, then the metal acquires a negative charge एंड एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द मेटल. ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज मेटल में किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये जो हमारा पॉजिटिव मेटालिक आयंस है, दैट पॉजिटिव मेटालिक आयंस आर formed in the solution. Okay, so this occurs in the case of zinc. So see in the diagram here the zinc ion is present. This is the oxidation process where we have a zinc sulfate solution, and in the zinc sulfate solution the zinc metal is dipped in a zinc sulfate solution. Okay, so when the zinc metal is dipped in a zinc sulfate solution, then the electron is given by the zinc and zinc ion is moving into the solution. Okay, so see here the electron, जब हमारे पास जिंक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है, दिस इलेक्ट्रोड गेट द नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास प्रोसेस क्या होता है? दिस प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस which is going on the zinc metal. Okay, so this is one condition. And if we and here we have the another condition means where the reduction process takes place, and here the metallic positive metallic ions जो हैं, they move from the solution and they enter into the metallic metal. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मेटल लैटिस में पॉजिटिव आयंस एंटर करते हैं, एंड दिस मेटल लैटिस acquires the positive charge. और ये हमारा केस कब होता है? It occurs in case of the copper, है ना, when the copper metal is dipped in a copper sulfate solution. तो जहां पर मेटल जो है, मेटल इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयन एक्वायर कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? हियर द रिडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दैट इज मेटल ion is accepting the electron and it is converted into metal. So we here the two reactions are taking place. One is the oxidation reaction and another one is a reduction reaction. Okay, so here the chemical reactions are shown. See the chemical reaction. In the first case, the positive metallic ions are passing into the solution. So positive metallic ions जब solution में pass हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या है? Positive metallic ion कहाँ से मिल रहे हैं? जो हमारा metal है, zinc metal है, that metal is losing the electron and is converted into metal ion. तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ठीक है, तो इन दिस केस जो हमारा इलेक्ट्रॉन which is given by the metal, that electron is left behind on the metal and that metal gets a negative charge. इसीलिए जो हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, दैट गेट्स अ नेगेटिव चार्ज. एंड यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर. It depends upon the concentration of metal ion in the solution. Solution में metal ion का concentration कितना है, and it also depends upon the nature of the metal, कि metal का nature कैसा है. ठीक है, so means the metal has a high tendency to lose the electron or metal has a tendency to gain the electron. This shows the nature of a metal. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? Oxidation reaction हो रहा है. It means metal has a tendency to lose the electron. Means वैलेंस शेल ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं. जहां पर वैलेंस शेल ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 या 2 होते हैं, इन दैट केस मेटल इजीली लूजेस द इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है बेटा आप लोगों का स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now next we have a positive ions. We have a second case, that is the positive ion depositing on the metal electrodes. So when the positive ion is getting deposited on the metal electrode, it means यहाँ पर क्या हो रहा है? Metal ion is accepting the electron and the ion is converted into the metal. ठीक है, so when the ion is converted into the metal, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? Gain of electron हो रहा है, and this gain of electron is known as the reduction process. Okay,
सो जहां पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है वहां पर हमारा क्या हो रहा है, मेटल जो है इट इज एक्वायरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, और this reaction also depends upon the three factors, that is the nature of the metal, temperature and the concentration of the metal ion in the solution. ठीक है, तो metal का nature, temperature and metal ion का concentration solution में, these are the three important factors on which the oxidation process and the reduction process depends. इतना clear है? Now next we have the another case, that is when the metal ion is placed. Next we see here, when the metal ion is placed in a solution, then the chemical reaction first or second, that is the oxidation or reduction, takes place depending upon a condition, and in this, during this reaction a dynamic equilibrium is established. Now how the equilibrium is established? This equilibrium is established by gain of electron or by the loss of electron. That is, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है मेटल आयन में, दैट मेटल आयन की वजह से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल, this metal attracts the oppositely charged free ions which is present in the solution. जो भी solution में हमारे free ions present होते हैं, आयंस हमारे कैटायंस होंगे या एनायन होंगे, है ना, तो अगर कोई भी मेटल हमारा पॉजिटिव चार्ज है प्लस उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट मेटल अट्रैक्ट्स द नेगेटिवली चार्ज आयंस, एंड इफ द मेटल इज नेगेटिव चार्ज देन द मेटल अट्रैक्ट्स अ पॉजिटिव चार्ज आयंस. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन the negative ions और the positive ions जो होते हैं, they remain close to the metal, metal के आसपास रहते हैं, और एक शॉर्ट लेयर बन जाती है नेगेटिव आयन की और पॉजिटिव आयन की मेटल के अराउंड. शॉर्ट लेयर इज फॉर्म्ड अराउंड द मेटल एंड दिस लेयर इज नोन एज द हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल लेयर. सी इन द डायग्राम, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देखिए, जैसे हमारा जिंक है, जिंक में क्या है, नेगेटिव आयंस है, क्योंकि जिंक की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की. सो बिकॉज ऑफ गिविंग द इलेक्ट्रॉन, the electron remains on the metal and the zinc metal get the negative ion. and तो जब जिंक मेटल नेगेटिव आयन रहेगा जिंक मेटल में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे दैट पॉजिटिव आयंस गेट डिपॉजिटेड अराउंड द मेटल, है ना, पॉजिटिव आयंस जो होंगे दे कम क्लोजर टू द मेटल, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आयन की एक लेयर बन जाती है. तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की लेयर बन गई, तो ये हमारा क्या है, दिस इज शोइंग द, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. ऐसे ही हमारे पास कॉपर में देखिए, जहां पर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, इन दिस केस the positive layer, positive charge is present on the copper and the negative ions is surrounding this copper metal, है ना. कॉपर मेटल को आसपास, कॉपर मेटल के आसपास कौन से आयन आ रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव आयन. सो यहाँ पर कॉपर के आसपास नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे, जिंक के आसपास पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे, बिकॉज ऑफ विच द इलेक्ट्रिकल लेयर इज फॉर्म्ड, and this electrical layer is known as the Helmholtz electrical layer. ठीक है, so when this Helmholtz electrical double layer is deposited around the metal, then a potential difference is developed between the metal and the solution. ठीक है, देखिए जब यहाँ पर डायग्राम में देखिए, जब यहाँ पर हमारे पास लेयर डिपॉजिट हो गई है, तो फर्दर ना पॉजिटिव आयन मेटल में जा सकते हैं, ना मेटल से कोई आयन जो है सोल्यूशन में जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है बिटवीन द मेटल एंड द सोल्यूशन, एंड ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस इट हैज अ tendency to measure the metallic electrode, that is tendency to measure or measuring the tendency of metallic electrode to gain the electron or to lose the electron. इतना क्लियर है बेटा आप लोगों का? Yes, ma'am. Okay, so electrode potential, we have an oxidation potential and we have an reduction potential. ठीक है, so ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, द इलेक्ट्रोड हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. तो जब किसी भी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, तो हम लोग क्या मेजर करते हैं, वी मेजर द टेंडेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है,
उसको हम लोग मेजर करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। एंड जब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को स्टडी करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट वी मेजर द रिडक्शन पोटेंशियल। तो वो जो इलेक्ट्रोड होगा, दैट इलेक्ट्रोड हैज अ रिडक्शन पोटेंशियल टेंडेंसी। ओके, तो जब हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करते हैं, देन वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो कभी भी जो हमारी रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, दैट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो ऑक्सीडेशन वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। मींस रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो होता है वो हमारा जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कॉपर है, कॉपर का हमारा रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.36 वोल्ट है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस 0.36 वोल्ट। ठीक है, मींस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की वैल्यू हमारी किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू तो सेम होगी, बट हमारे साइन रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Now next how we measure the Yes, ma'am. electrode potential. Now in this case, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इंडिविजुअली मेजर करना, इट इज टोटली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो जब हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करते हैं, देन इट इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू द अनदर इलेक्ट्रोड। किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में हम लोग उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं, और हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वी से दैट we have a relative value of electrode potential। relative value का मतलब किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में मेजर करना। ठीक है, जैसे रिलेटिव विस्कोसिटी, रिलेटिव सरफेस टेंशन है ना, ये सारी वैल्यूज भी तो हम लोग बोलते हैं ना। तो रिलेटिव वर्ड जहां आता है, इट मींस किसी भी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस से रिलेट करके उसकी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, देन वी टेक अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मेटल का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज SHE और NHE। ठीक है, सो इन दिस केस, इन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सी द डायग्राम, इट इज शोन ओवर हियर। In the diagram, this is a diagram for the standard hydrogen electrode, where we have a platinum electrode, and this platinum electrode is covered with a platinum foil। ठीक है, platinum foil जो होता है, it is covered with a platinum black, and here we have a platinum electrode and platinum wire. This platinum wire is connected with a platinum black, which is covered with a platinum foil, and this is dipped in a 1 molar H प्लस आयन सोल्यूशन, यानी कि 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन में हम लोग उसको डिप करते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस इज ब्लोन इनटू दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्लास का होता है, इट इज कवर्ड विद द ग्लास, एंड हाइड्रोजन गैस इज कंटिन्यूअसली पास्ड इनटू दिस इलेक्ट्रोड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इट इज बबल्ड ओवर एयर, एंड जनरली यहाँ का जो हम लोग इसका जो इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम लोग लेते हैं, दैट इज फिक्स्ड एट 0 वैल्यू में हम लोग उसको फिक्स करते हैं, एंड इसी के रेस्पेक्ट में दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, सो जब यहाँ पर इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लैटिनम, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मेटल, एंड H2 representing a gas which is passed at 1 atmospheric pressure, and H plus ion, that is the acid, having acid solution हम लोग यहाँ पर लेते हैं, उसका जो concentration होता है solution का, it is 1 molar, that is unity। okay, so for this is the whole electrode potential which is used for measuring the electrode potential of a particular metal। so यहाँ पर हम लोग यहाँ see in the reaction, that is if the oxidation is taking place, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो H2 that is hydrogen gas is losing an electron, it is converted into hydrogen metal, hydrogen ion, sorry, hydrogen gas is converted into hydrogen ion plus 1 electron is given by the hydrogen, and जहां पर loss of electron होगा तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, see the second reaction, this reaction is an oxidation reaction, and in the first reaction the hydrogen ion is accepting an electron,
and here it is converted into hydrogen gas. तो ये जो हमारी रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन इज द reduction reaction and second reaction is the oxidation reaction. So this reaction is written with respect to the electrode, with respect to the metal ion which is connected over here. ठीक है, अगर मेटल आयन में ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड इफ द मेटल आयन में रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है then hydrogen is losing the electron. So according to the condition, the standard hydrogen electrode की जो वर्किंग होती है, ये हमारा जो वर्क करता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द मेटल आयन विच इज कनेक्टेड, अकॉर्डिंग टू द मेटल इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड विद दिस. ठीक है, तो सी इन द एग्जांपल हियर. Now let's take an example. For example, if you want to measure the electrode potential of a zinc, then यहाँ पर हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर ऑफ जिंक सोल्यूशन में, 1 मोलर ऑफ जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करेंगे और उसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कपल्ड करेंगे, है ना, कनेक्ट करेंगे. And here it is connected through a salt, coupled through these with the standard hydrogen electrode through a salt bridge. And here this is an outer circuit. So in this case we have a zinc plate or a zinc rod, zinc electrode, and here the oxidation reaction is taking place. That is, zinc is easily losing the electron, and the electron which is given out by the zinc electrode, this electron flows through the outer circuit and it goes into the cathode. That is, the flow of electron is always from the anode to cathode, है ना. तो यहाँ पर आउटर सर्किट में देखिए, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज शोन थ्रू एन एरो. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम द एनोड बिकॉज हियर द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द जिंक एंड इट इज गोइंग इनटू द कैथोड वेयर द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जिंक मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द जिंक आयन, एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी, that is the hydrogen ion is accepting the electron and is converted into the hydrogen gas. Okay, so this is the reaction which is taking place at the zinc electrode when the zinc is when the one half cell is coupled with the standard hydrogen electrode. Okay, so यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, zinc is working as an anode as I have told you, and here the electrode potential of the zinc is 0.76 volt. तो ये जो 0.76 volt है, this is the oxidation potential, and reduction potential क्या हो जाएगा, साइन हम लोग रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -0.76 volt. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कन्वेंशंस, जो हम लोग मॉडर्न जो रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स में, इन दिस केस द शी दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव साइन, एंड यहाँ पर जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, हियर द ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, एंड यहाँ पर भी हमारा जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, देन प्लस साइन इज कन्वर्टेड इनटू द नेगेटिव साइन, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज -0.76 volts. ठीक है, सो रिडक्शन अकर्स एट द गिवन इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिव्स अ पॉजिटिव साइन, given a positive sign, and if the oxidation is occurring at a given electrode, then the electrode potential is given a negative sign according to the modern conventions. Means modern convention के according जो भी हमारे रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं. इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है बेटा आप लोगों का? यस मैम. हाँ, इसीलिए यहाँ पर +0.76 वोल्ट को हम लोग -0.76 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो -0.76 वोल्ट हमारा क्या हो गया, रिडक्शन जो है उसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है. नाउ फॉर दी कॉपर इलेक्ट्रोड जो हमारी वैल्यू आती है, ये हमारी कितनी होती है, 0.34 वोल्ट, 0.34. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग कॉपर के लिए फाइंड आउट करते हैं, सो इन द केस ऑफ कॉपर, व्हेन द कॉपर इज कपल्ड विद द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देन यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड इज वर्किंग एज अ रिडक्शन.
यहाँ पर कॉपर में हमारे पास क्या होगा, दिस कॉपर हाफ सेल इट इज वर्किंग एज अ रिडक्शन हाफ सेल, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा इट इज वर्किंग एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। सो कॉपर में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस हाइड्रोजन गैस इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, and that electron which is given by the hydrogen gas is accepted by the copper, and copper ion is converted into the copper metal. Is that clear? सो रिडक्शन पोटेंशियल को देख करके भी हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज की, कौन सा मेटल हमारा ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा मेटल हमारा रिड्यूस होगा, ठीक है। सो इन दिस केस जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं देन देयर इज एन एक्सप्रेशन। अब अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को मेजर करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, मेटल आयन is accepting an electron, metal ion plus n number of electron and it is converted into metal, ठीक है। तो कभी भी जब हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हम लोग किसके टर्म्स में लिखेंगे, रिडक्शन के टर्म्स में, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है बेटा? नाउ फॉर दिस, अब ये हमारे रिएक्शन जो है इट इज शोइंग द रिवर्सिबल रिएक्शन। सो फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन द फ्री एनर्जी चेंज एंड its equilibrium constant both are interrelated and they are written as delta G equal to RT ln K. K is an equilibrium constant value plus RT ln product upon reactant, ठीक है। so यहाँ पर RT ln K is represented by the delta G naught. So this delta G naught is the standard free energy change. It is delta G naught plus RT ln product upon reactant. So ये जो हमारा रिलेशन है, इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द want of reaction isotherms, okay. So in this case the delta G naught is the standard free energy change. Standard free energy change क्या होता है, means the free energy change when the concentration of reactant and concentration of product is unity, है ना, दोनों हमारे वन होंगे, सिंगल, सो यूनिटी होगा, देन उस वक्त जो फ्री एनर्जी में चेंजेस होते हैं that free energy change is known as the standard free energy change, okay. So in a reversible reaction the electrical energy which is produced in a reaction it is generated at the expense of the decrease in the free energy, means when the free energy decreases then only the electrical energy is produced, okay. So ये जो हमारा expression है ये हमारा कैसा हो जाएगा, free energy means there is decrease in the free energy means minus delta naught equal to n EF. N is the number of electron, change in the number of electron, that is how many number of electrons are gaining or losing by a particular metal. Then E is the electrode potential, F is the Faraday's of energy, ठीक है, और delta G naught equal to minus N E naught standard free energy, this is the standard electrode potential and F, okay. So when we write this equation, that is when we put the value of delta G and delta G naught in the above equation, that is in the equation 1, so we get a value that is minus n F E equal to minus n E naught F plus RT ln। अब हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो हमने पहले आपको रिएक्शन दिखाई थी, इस रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या है, मेटल आयन, मेटल इज द प्रोडक्ट एंड मेटल आयन इज अ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या है, मेटल है, और रिएक्टेंट हमारा क्या है, मेटल आयन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, m अपॉन mn प्लस, है ना। इतना क्लियर हो रहा है बेटा, कैसे लिखेंगे इसको? Yes, ma'am. ओके, सो इन दिस केस फर्दर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस एन ई नॉट एफ प्लस आर टी एल एन 1 अपॉन एम एन प्लस, यानी कि मेटल आयन की जो वैल्यू है उसका जो कंसंट्रेशन है दैट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या हो जाता है, 1, है ना। तो ये हमारा 1 अपॉन एम एन प्लस हो जाएगा। नाउ व्हेन वी रिवर्स दिस 1 अपॉन एम एन प्लस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एन ई एफ इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ माइनस आर टी एल एन, then in bracket concentration of Mn plus, concentration of metal ion. So
ऑन डिवाइडिंग साइन हम लोग रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने के बाद हम लोग NF से डिवाइड करेंगे होल इक्वेशन को, जो अबव इक्वेशन है दैट इज डिवाइडेड बाय NF. सो हियर वी गेट E इक्वल टू E नॉट प्लस RT अपॉन NF ln mn प्लस. अब यहाँ पर ln की वैल्यू को हम लोग नेचुरल लॉग से बेस 10 से रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा E नॉट इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ m कंसंट्रेशन ऑफ Mn प्लस. ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नोन एज द नर्स्ट इक्वेशन, एंड इन दिस केस द 2.303 इंटू RT जो हमारी वैल्यू है, R की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पुट करेंगे, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज रिटन इन केल्विन. सो हमारा कितना हो जाएगा 0.0592 वोल्ट अपॉन n, है ना. फेरेडेज की वैल्यू हमें पता है 96,500, ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, R की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 0.0592 वोल्ट अपॉन n. सो नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.0592 अपॉन n वोल्ट लॉग ऑफ मेटल आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, नाउ ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस रिलेशन shows the two things, that is we get two informations from this equation, that is the electrode potential is directly proportional to the directly proportional to the temperature. See the above equation, that is E equal to E naught plus 2.303 RT upon NF log of Mn, है ना. तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है it depends upon the temperature, means directly related to the temperature. Relation between the electrode potential directly proportional to the temperature, means when the temperature increases the electrode potential also increases, when the temperature decreases the electrode potential also decreases. And in the same way the electrode potential is directly related to the concentration of the metal ion, means when the concentration of the metal ion in the solution increases then the electrode potential increases, and when the concentration of metal ion in the solution decreases then the electrode potential क्या करेगा, decrease करेगा. So ये जो Nernst equation है, this Nernst equation also shows the relationship between the electrode potential and the metal ion concentration plus electrode potential and the temperature relation. इतना clear है बेटा आप लोगों का? Yes, ma'am. Now in this case the electrode potential is arranged in increasing order and this series is known as the मैम यहाँ पे, हाँ बोलो मैम यहाँ पे माइनस होता है ना, यहाँ पे कहाँ पर, मैम ये E नॉट सेल माइनस 0.059 रिवर्स अपॉन. कर दिया ना हमने इसको साइन, यस मैम. है ना. माइनस तब Yes, होगा ma'am. रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट लिखेंगे तब. Yes, ठीक है ma'am. Yes, ma'am. प्राची. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now when the next we comes to the electrochemical series. Now electrochemical series means when the elements are arranged in the increasing order of their electrode potential, increasing order of their standard electrode potential, then that series is known as the electrochemical series. And see in the table here, in this electrochemical series we have a standard electrode potential, that is we have a reduction potential of a particular element, and this reduction potential is arranged in the increasing order, means least वाले का हमारा सबसे ऊपर है और जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज वो हमारा सबसे बॉटम में है. ठीक है, सो जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा दैट इज वर्किंग एज एन एनोड, एंड फ्रॉम एनोड द रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है ये हमारा क्या है, दिस इज एनोड से हम लोग कहाँ मूव करें, कैथोड की तरफ. एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज टेकन एज अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज टेकन एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी रिएक्शन लिखी हुई है ऑल दिस रिएक्शंस आर रिटन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. जितने भी हमारे रिडक्शन रिएक्शंस हैं उन्हीं के रेस्पेक्ट में ये रिएक्शंस लिखी गई हैं. सो लिथियम आयन इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड इनटू लिथियम एंड इट इज अ बेस, और हेयर जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है इट इज -3.05. तो रिडक्शन पोटेंशियल से हमें क्या पता चलता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द लिथियम टू गेट रिड्यूस्ड. ठीक है, यानी कि लिथियम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होगी. इंस्टेड ऑफ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, लिथियम इजिली लूजेस द इलेक्ट्रॉन,
but it is very difficult for lithium to accept the electron. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये क्या शो कर रही है? दिस वैल्यू इज शोइंग दैट lithium has a very high tendency to get oxidized, to get मतलब टू लूज एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी लिथियम में ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे कम है. इतना क्लियर है? जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके जो भी, जैसे हमारा लिथियम के बाद पोटेशियम में जो है रिडक्शन पोटेंशियल पोटेशियम का लिथियम से थोड़ा सा ज्यादा है, मींस लिथियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी लिथियम से थोड़ी सी कम होगी. क्लियर है? और जब हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे, फ्लोरीन, सी द रिएक्शन, फ्लोरीन मॉलिक्यूल एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड आयन. तो यहां पर जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का, इट इज +2.87. सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? फ्लोरीन का. एंड फ्लोरीन हैज अ हाईएस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है फ्लोरीन में, वो ज्यादा होती है. ठीक है, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इस सीरीज में. ओके, मींस फ्लोरीन एक तो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हमारे क्या करते हैं? दे इजिली गेन्स द इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. ये जो वैल्यूज है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इन वैल्यूज को हम लोग देख करके इजिली बता सकते हैं कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा, और किस मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, और किस मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से पहले जितने भी हमारे मेटल्स एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से रिप्लेस कर सकते हैं. और हाइड्रोजन के बाद जितने भी एलिमेंट हैं, दैट एलिमेंट्स आर इजिली रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोजन इन देयर सोल्यूशन. इतना क्लियर है आप लोगों का? रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, दैट पर्टिकुलर मेटल विल रिप्लेस द एलिमेंट which has the higher reduction potential from in their solution. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा मेरी बात? Yes, ma'am. Okay, so this is the valuable information which we are getting from the electrochemical series, that is the age of oxidation or reduction, means how easily the metal get oxidized or how easily the metal get reduced. ठीक है, तो जहां पर हमारे पास प्लस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस में होगी, इट मींस दैट मेटल इज इजिली गेटिंग रिड्यूस्ड. जहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारी नेगेटिव में होगी, माइनस साइन में, इट मींस दैट मेटल हैज अ हायर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास इसका जो इन्फॉर्मेशन है दैट वी गेट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट इज द रिप्लेसमेंट टेंडेंसी. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा. वी हैव टेकन द एग्जांपल, लेट्स दैट इज द जिंक एंड द कॉपर, एंड व्हेन वी टेक बोथ जिंक एंड द कॉपर, जिंक हैज अ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 0.76 वोल्ट एंड कॉपर हैज अ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 0.34 वोल्ट प्लस, है ना. तो कॉपर में हमारा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? प्लस 0.34 वोल्ट है, और जिंक का हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76. तो जिंक में -0.76 का मतलब क्या हो गया? जिंक हैज अ हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिड्यूस्ड. और इस वैल्यू से हमें यह भी पता चलता है कि जिंक जो है कॉपर को सोल्यूशन में रिप्लेस करेगा. जैसे अगर हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं, देन द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. तो ये जो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? द जिंक इज रिप्लेसिंग द कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन एंड कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू, कॉपर आयन इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल. ओके, now third information which we get from the electrochemical series, that is the spontaneity of the reaction, how easily the reaction is taking place, how the reaction is spontaneous, how much it is spontaneous. ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, इसका मतलब है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप प्रोसीड करेगा. एंड इफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज इज इन नेगेटिव साइन, देन दैट रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, मींस रिएक्शन अकर नहीं होगी, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ठीक है, एंड लास्ट इंफॉर्मेशन विच वी गेट from this electrochemical series, that is we can easily
calculate the value of equilibrium constant. So here we have a standard electrode potential, that is E naught equal to RT upon NF log ln K equilibrium. So K is an equilibrium value. ठीक है. So in this case ये हमारा कितना हो जाएगा 2.303 RT upon NF log K equilibrium. So log K equilibrium की वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? log K equilibrium इक्वल टू NF into E naught standard electrode potential upon 2.303 RT. तो इससे हम लोग के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of standard electrode potential. Okay, is that clear? So this is how we find out the electrode potential of a cell, and it is calculated, or it is find out in terms of reduction potential. Now after this, next we comes to the electrochemical cell, because as we all know that we have two types of cells, that is the electrolytic cell and the electrochemical cell. In the electrolytic cell, when the electric current is passed, then the chemical reaction takes place. And in the electrochemical cell, at the expense of a chemical reaction, the electrical energy is generated. Okay, so here we see the electrochemical cell. So the electrochemical cell is a device in which the redox reaction is taking place, and this redox reaction is utilized to generate the electrical energy. Okay, so generally electrochemical cells are also known as the voltaic cell or the galvanic cell, है ना. कॉमन नेम जनरली हम लोग कहते हैं इट इज अ गैल्वेनिक सेल, इट इज अ डैनियल सेल, वोल्टेइक सेल. सो दी यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज द एनोड, and the electrode where the reduction takes place, that particular electrode is known as the cathode. Okay, so sorry, in practical application जो हमारा galvanic cell होता है, that galvanic cell is a Daniell cell. ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, 11th-12th क्लास में हम लोग पढ़ते आते हैं, है ना. बीएससी में भी अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. इट इज अ कॉमन सेल. सो sorry, this Daniell cell consists of a this Daniell cell is generally consist of a zinc electrode, and this zinc electrode is dipped in a जिंक सल्फेट सोल्यूशन. मींस जिसका हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का हम लोग सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे. ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ जिंक सल्फेट सोल्यूशन where the oxidation reaction takes place, that is the loss of electron takes place. Sorry, and the copper electrode is dipped in a copper sulfate solution where the reaction takes place. So in this case both these half reactions takes place in a particular half cell. ठीक है, तो जहां पर हमारा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है, that is known as the anodic half cell, where the reduction takes place, that is known as the cathodic half cell. ठीक है, sorry. So these two half cells are separated by a salt bridge, and this salt bridge is filled with an inert electrolyte. So in this case, the two solutions can seep through this salt bridge. It passes through a salt bridge and comes in contact with each other automatically. And here there is an outer circuit where the electron flows from anode to cathode. And this anode get a negative charge because here the electrons are produced and the excess of electron is present on the anode. Cathode get a positive charge, here the excess of metal ion is present on the cathode. ठीक है, so see the reaction which is taking place. पहले भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं. That is at the anode, it is known as a negative electrode. Here the zinc metal is converted into zinc ion and 2 electrons are given by the zinc. And at the cathode, that is the positive electrode, here the copper ion is accepting the electron which is given by the zinc and is converted into the copper. Okay, so this is the overall cell reaction, that is the zinc plus copper ion, and here it is zinc
metal is converted into zinc ion, and copper metal is converted into the copper ion is converted into the copper metal. So here the two half reactions are combined and we get a overall complete reaction, that is the redox reaction. Okay, so in this case the zinc has a higher tendency to lose the electron, and it get a negative positive sign and zinc get sorry and zinc ion get deposited as zinc, and here the zinc metal acquires a negative sign. And on the other hand, copper has a tendency to go into the solution, and it is so on the other hand, the tendency of a copper to go into the solution is less than the tendency of a copper ion to get deposited as a copper. ठीक है, so copper जो होता है it becomes a positively charged electrode and zinc becomes a negatively charged electrode. So how we represent the EMF of a cell? Generally जो हमारा सेल का EMF आता है इट इज 1.1 वोल्ट. अभी मैं बता दूंगी कैसे कैलकुलेट करते हैं आप EMF. First we see how the cell is represented. So here for representing a cell, that is on the left hand side we write the anode and on the right hand side we write the cathode. Anode is represented by a negative sign and cathode is represented by a positive sign. Okay, so here on the top it is shown that this is a flow of the electron. So electron is moving from the anode to cathode, and the current which is generated is moving from the cathode to anode. Okay, so this is how we represent a galvanic cell. Now for writing a galvanic cell, ये तो हमारा simple reaction है, and at the center we write the anode means zinc, it is an metal, and here cathode means copper, it is also a metal, and salt bridge is represented by the two straight lines जो यहाँ पर बीच में zinc sulfate aqueous solution and copper sulfate aqueous solution के बीच में जो यहाँ पर straight lines हैं, this is representing a salt bridge. Okay, so for writing a cathode and anode, how we represent the cathode and anode? See here, that is the, as I have told you that anode is always written on the left hand side and cathode is always written on the right hand side. So electrode on the left hand side, that is anode, is represented by writing the metal first and then its electrolyte. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोड को एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, सो हेयर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत हो रही है. अब आ रही है? यस मैम, आ रही है, बीच में ब्रेक हो जाती है, बार बार लेफ्ट भी हो रही है क्लास. अच्छा अच्छा, यस मैम, तो मैम कल पढ़ा दीजिएगा, बार बार लेफ्ट हो रही है तो छूट रहा है. चलो इतना मैं पढ़ा देती हूँ, फिर एएमएफ ऑफ सेल में कल पढ़ा दूंगी तुम लोग, ठीक है? यस मैम. इतना पढ़ लेते हो. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या, हाउ वी रिप्रेजेंट द एनोड. एनोड को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग मेटल को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर मेटल आयन को रिप्रेजेंट करेंगे. सो जैसे जिंक इज वर्किंग एज एन एनोड, तो ये हमारा कैसे, जिंक मेटल, देन वी गेट अ स्लैश साइन, देन जिंक आयन. ओके, मींस यहाँ पर हमारा क्या है, मेटल और आयन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस मेटल इज कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन, और जिंक कोलन जिंक आयन, और जिंक सेमीकोलन देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड में रिडक्शन का प्रोसेस होता है. सो रिडक्शन का प्रोसेस होने का मतलब क्या हो गया कि मेटल आयन इज कन्वर्टेड इनटू मेटल. ठीक है, तो जैसे कॉपर है, कॉपर आयन इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर, तो सबसे पहले हम लोग आयन लिखेंगे, देन उसका मेटल लिखेंगे. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं. And as I have told you that salt bridge is represented by the two straight line. ठीक है, सो किसी भी डैनियल सेल को या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जिंक, देन वी हैव अ कोलन, देन जिंक आयन, means here the oxidation is taking place, zinc is converted into zinc ion, and 1 molar is representing the concentration of the solution. Solution का हमने कितना concentration लिया है, then we have a two straight line that is representing a salt bridge, and after this two straight line then we have a copper ion
Cu2 plus, then 1 molar concentration of that iron, and then copper metal. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं. इतना क्लियर है आप लोगों का? Yes, ma'am. ये और देख लीजिए आप लोग, दैट इज द EMF of an electrochemical cell, how the EMF is represented. So for the electrochemical cell which is obtained by coupling two half cells, जब हम लोग two half cells को combine करते हैं, then we get a complete cell. So complete cell को represent करने के लिए see how it is represented. Zn यहाँ पर माइनस साइन लिखा गया है, मतलब क्या है, ये हमारा एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा है. माइनस साइन जिंक से पहले आप लोग लिखेगा, तो माइनस Zn ऑब्लिक ZnSO4 मीन्स यहाँ पर हमारा क्या है, zinc is converted into zinc ion, then we have a salt bridge, then copper sulfate solution. Here the copper ion is present and then it is converted into copper metal. प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड को. माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनोड को. ओके, सो हम लोग EMF फाइंड आउट करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट राइट हैंड साइड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट लेफ्ट हैंड साइड. सो ये हमारा राइट ई राइट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एंड ई माइनस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. ई लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. ठीक है, सो कैथोड और एनोड का, तो यहां पर देखिए अब जिंक का हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना था, -7.6. कॉपर का कितना था, +3.4. तो यहां पर जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू +3.4 माइनस इन ब्रैकेट -7.6, एंड जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1.1 वोल्ट. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा अगर पॉजिटिव में आता है, EMF अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इज feasible. And if we get a negative value of electrode potential, it means that reaction is not feasible. Reaction occur नहीं होगी. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? Is that clear to you all? So for Nernst equation for a cell, that is zinc is converted to zinc ions. ये cell representation है. Next we have an equation, and after that how we write it, that is E cell equal to E standard electrode potential of a cell minus 2.303 upon NF V, that is the volt log Q. और Q क्या represent कर रही है, zinc ion upon copper ion, product upon reactant. Okay, so for this the Nernst equation can be written as same is written, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, यही है हमारा. तो नर्स्ट इक्वेशन को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ए एनोड. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस 0.0592 अपॉन n वोल्ट लॉग ऑफ जिंक, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन. ठीक है, ये हमारा क्यू है. सो जब आप इसको रिवर्स करेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है. जब आप रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू, है ना, रिवर्स साइड. तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस 0.0592 अपॉन 2 वोल्ट. 2 मीन्स 2 हमारा क्या है, एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इतना क्लियर है बेटा आप लोगों का? यस मैम. Okay, so this was the electrochemical cell, how we can represent the electrochemical cell. So आज मैं आप लोगों को